Hello everyone. Now, are we ready for the next discussion of the topic like reactions of haloarenes? Do haloarenes react in a similar manner like haloalkanes? No. The reactions are not same. Like nucleophilic substitution reaction takes place readily in case of haloalkanes due to the polar nature of CX bond. In haloarenes, there is also a CX bond. Then why the reactivity of haloarenes for nucleophilic substitution is not same as in the case of haloalkanes? So let us discover. Starting with the reactions of haloarenes. Haloarenes show three types of reaction. One is nucleophilic substitution reaction, the other is electrophilic substitution reaction, and reaction with metals. This type of reaction we have seen in haloalkanes also. But in case of haloarenes, the reactivity of these haloarenes for nucleophilic substitution reaction is not same as in haloalkanes. We will be discussing about the reasons. Now, reaction with metals include Fittig reaction and Woods-Fittig reaction. So these are the reactions with metals, Fittig and Woods-Fittig. Let us discuss one by one. Nucleophilic substitution reaction for haloarenes. What does it mean? Suppose we are discussing nucleophilic substitution reaction. The first and foremost, I will say, discussion is that haloarenes are not as much reactive as haloalkanes towards nucleophilic substitution reaction. Aryl halides are extremely less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction. Less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction. What is the reason? Number one is, I will say, electron-electron repulsion. Why electron-electron repulsion? See, aryl halide means there is an aromatic ring like this and halogen atom is attached to it. We know benzene is rich in this pi cloud. We can see the pi cloud in benzene. This is the pi cloud in benzene. And nucleophiles are also electron excess. So, there is repulsion occurring between the pi cloud of benzene or the aromatic ring and the nucleophile. There is repulsion between the pi cloud and the nucleophile, which is also electron excess. So, the nucleophile cannot react or attack the electrophilic site so readily, so easily. Second point I will say, the partial double bond character of, see, we know partial double bond character of CX bond in aryl halides. Why? Due to resonance. Now, this thing, the lone pair above the halogen atom in case of aryl halides is in conjugation with the pi cloud. This is the pi cloud. And here is the carbon halogen bond. Now, lone pair above halogen. This is the lone pair above halogen, which is in conjugation with the benzene ring. Now, this involves in resonance in this manner. And this we can see increases the electron density in the benzene ring and it is known as plus R effect. So on account of resonance, the carbon halogen bond, on account of this type of resonance, the carbon halogen bond acquires a partial double bond character. When I say carbon halogen bond, I mean this bond. Acquires a partial double bond character, for which this bond
does not break easily as it was taking place in case of RX. In case of RX, the carbon-halogen bond was breaking easily. But here it does not happen on account of partial double bond character. Now the third point I will say is on account of the difference in hybridization of the carbon that is holding the halogen. Hybridization. In case of aryl halide, this is the aryl halide. The carbon atom holding the halogen is this carbon, which is sp2 hybridized. But in case of alkyl halides, Rx, so let me write any one alkyl halide to point out the hybridization over the carbon. In this case, we can see this carbon is sp3 hybridized. And from the concept of hybridization, we know since this carbon is sp2 hybridized, which is holding the halogen atom, in case of aryl halides, this carbon is considered to be more electronegative than in case of alkyl halides. Just because it is more electronegative, it will hold the carbon halogen, or rather I'll say it will hold the halogen more tightly, and it will not release X minus easily as it was happening in case of alkyl halides. Now, the fourth reason can be due to the instability of the phenyl carbocation. Instability of phenyl carbocation. Now, we are seeing from the above cases that we had discussed. What did we discuss? Let us just scroll and see. First one was electron-electron repulsion. Nucleophile was if approaches the pi cloud, faces a repulsive interaction. Then the carbon that was holding the halogen on account of this plus R has a partial double bond character and is not easy to break. The hybridization of the carbon holding the halogen being sp2 is more electronegative than in case of haloalkanes. Now, if at all we consider that the halogen atom is being released as X minus, so the phenyl cation that is obtained is not stable. That is, this is not stable. We can understand. So on account of all these reasons, phenyl cation, of course, when we can obtain, if we consider SN1, then only we'll talk about phenyl cation. If we talk about SN1 mechanism, then only we'll talk about phenyl cation, because SN1 mechanism occurs with self-ionization. So this is unstable. And SN2, phenyl carbocation is unstable, so SN1 is ruled out. And since the phenyl group which is there, that is bulky, SN2 is also ruled out. So this we can see that the aryl halides are not as much reactive as alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction. Now, does it mean that nucleophilic substitution reaction does not occur at all? No, it doesn't mean so. We have seen in Dow's process. Dow's process is a process of obtaining phenol from chlorobenzene. This is the chlorobenzene. When we give drastic condition means high temperature, high pressure. So number one condition is aqueous NaOH, in presence of aqueous NaOH at a temperature of 623 Kelvin at 300 atmospheric pressure. And number two, H plus, we will get phenol. This is how you can obtain phenol from chlorobenzene. This is phenol. What is the name? Phenol. And this is chlorobenzene. So we should not forget these reactions. These are very essential reactions. Okay. So chlorobenzene to phenol, it's a Dow's process, and this is the drastic condition. Yes, it is nucleophilic substitution reaction. We can see the Cl getting substituted by this OH. But
We should also mark the point that it is occurring at a very high temperature and very high pressure condition, which is drastic condition. So the reaction is not easy to perform. Well, the reaction can become easy to perform in presence of electron withdrawing group. In presence of electron withdrawing group like a nitro group at the ortho para positions can increase the rate of the reaction. Why did I say so? Let us see what is happening here in the mechanism. Suppose I say that, let us see what is happening in the mechanism. Suppose this is the haloarine and this is your carbon halogen bond. Now, if a nucleophile, say OH minus, is attacking, where will it attack? It will, of course, attack on the electrophilic carbon, which is this carbon, which is electrophilic carbon. So, if it attacks, it will attack here. And how does the bond shift? The bond shifts in this manner on account of the attack. Now, this step is your slow step and it is your slow RDS. This is the mechanism that is taking place. So what is happening over here, we can see that, these bonds are unchanged. So you can draw it in this manner. The attack is happening here and immediately Cl is not leaving. Cl is there and OH is attacking. So there is a bond between carbon and oxygen and OH gets attached. And there is a negative charge over here on account of the bond that has shifted. Which bond? This bond that has shifted. Okay. So on account of this bond that has shifted, there is a negative charge here. Now this negative charge is again in conjugation with the pi cloud. So it comes in this manner. Here and here. So the negative charge actually moves from the ortho position to the para position. It moves from the ortho position to the para position. Let us see. So this was unchanged. This is unchanged. Cl is there. OH is there. It's unchanged. And what has changed? The negative charge has given a double bond here. The double bond has become a negative charge here. So next, in the next resonating form again, if we draw the next resonating form, what it will be? It will be somewhat like this. The direction of the arrow should be in one side, either this or in the opposite direction, this. Please do not give both the directions in one resonating form structures when you are drawing. So we were drawing in this manner, right? This manner. So we are using that only. So the negative charge comes and forms a double bond. Double bond opens up and forms a negative charge. So in the next resonating structure, we will be getting like this. This is your benzene ring. Here a double bond remains unchanged. Cl, just a minute. Okay, here is a double bond that remains unchanged. Cl here, OH here, and a double bond here. Double bond forming a negative charge here. Now, if you observe all the resonating forms, just try to observe all the resonating forms together like this. You see that the double bond is in ortho position, here in para position, in the next structure again in ortho position. So the double bond, the negative charge. The negative charge is in the ortho position, next in the para position, next in the ortho position. So I can say that the negative charge or the electron density is greater selectively in the ortho para position. For this reason, if there is any electron withdrawing group like nitro,
in the ortho-para position, then what will happen? It will cause better negative charge delocalization. Negative charge delocalization, and it will actually stabilize the resonating forms. It will actually stabilize the resonating forms. तो ये क्या था? अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है ओवर दिस कंपाउंड तो कहाँ पे होगा? ये कहाँ पे होगा? इस कार्बन में होगा, जहां पे Cl अटैच्ड है, क्योंकि वही इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है. इलेक्ट्रोफिलिक माने डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर उसका है. तो जिसके चलते क्या होगा? यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि ऑर्थो पोजीशन है. और आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव चार्ज जो बना ऑर्थो पोजीशन में, ये डीलोकलाइज है एंड ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है. ये रहा नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. आप देखिए नेगेटिव चार्ज के बाद क्या है, मैं हाईलाइट करते जा रही हूं. आप देखिए ये नेगेटिव चार्ज आपका, ये सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये डबल बॉन्ड. तो हुआ ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है? ऑर्थो पे आया, यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पैरा पे आया, फिर उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे आया. तो नेगेटिव चार्ज गोज ऑन डीलोकलाइज, माने ये डीलोकलाइज्ड होते हैं. और ये कहाँ कहाँ आता है? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में आता है. तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो जैसा ग्रुप है, तो क्या होगा? ये नाइट्रो ग्रुप अपना जो स्ट्रक्चर है उसके चलते ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, जिसको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन. और जहां पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन होते हैं वहां पे क्या होता है? स्टेबिलिटी. तो एक आइसोमर हम देखते हैं, जैसे ये है आपका पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. तो ये है क्लोरो, यहाँ पे नाइट्रो. अब नाइट्रो का स्ट्रक्चर में ये जो बात है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे O माइनस है और दूसरे में डबल बॉन्डेड O है. तो ये नाइट्रो का जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण ही तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचता है. और ये अगर OH माइनस अटैक हो तो ये कहाँ पे होगा? जैसे मैंने देखा ये प्रीवियस केस में इस कार्बन में होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है. और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देगा. तो ऐसे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा? ऐसे नेगेटिव चार्ज ये ऑर्थो पोजीशन में आएगा, पैरा पोजीशन में आएगा, और ये ऑर्थो पोजीशन, दूसरा ऑर्थो पोजीशन में आएगा. तो नाइट्रो अगर हमारे ऑर्थो में है, पैरा में है, तो क्या होगा? बेटर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन के कारण ये स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा. तो ये रहा आपका रीजन. इसके बाद एक और चीज है जहां पे हमने देखा कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. इसके बाद आई विल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अगर इंक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो भी इंक्रीज होगा. तो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कम ड्रास्टिक होना है अब, तो उसको देखते हैं. देखिए अगर क्लोरोबेंजीन है तो उसका तो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है, हमने देखे हैं डाउस प्रोसेस में. तो ये मानिए कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, एक पैरा पोजीशन में नाइट्रो है. तो अगर हम इसमें एक्वस NaOH, जैसे प्रीवियसली हमने दिया था ना एक्वस NaOH, और टेम्परेचर क्या होगा? 443 केल्विन. पहला का टेम्परेचर डाउस प्रोसेस का कितना था? 623 केल्विन. तो हम देख सकते हैं अब कम टेम्परेचर लग रहा है. और प्रेशर 300 था, तो यहाँ पे प्रेशर एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है. H+ कंडीशन, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो ये ONa रह जाएगा, OH नहीं बनेगा. अगर सेकेंड स्टेप में H+ आप नहीं देते हैं
तो ये जो मैं लिख रही हूँ ना प्रोडक्ट, यहाँ Cl के जगह पे OH, तो तब Cl के जगह पे ONA होगा और H प्लस डालने से ही ये H आता है। तो ये है आपका प्रोडक्ट 623 से 443, तो कम ही है। इसके बाद हम देखेंगे एक से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप अगर आता है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, और वो भी कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन में ही आएगा। तो पहले एक नाइट्रो था, दूसरा नाइट्रो अगर इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, तो अब जो टेम्परेचर कंडीशन है वो पहले जो हमने देखा ना एक नाइट्रो में 443, उससे कम है। तो ये यहाँ भी NaOH और टेम्परेचर है 368 केल्विन, जो कि ऑफ कोर्स 443 से तो कम ही है। और सेकंड क्या है? H प्लस डालने से आपका हाइड्रोलिसिस OH आ जाएगा, तो प्रोडक्ट होगा आपका Cl के जगह पे OH एंड देयर विल बी नाइट्रो। ऑर्थो पैरा पोजीशन में जैसे नाइट्रो था वैसा है, बट रिएक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप गेटिंग इंक्रीज्ड। यहाँ पे एक नाइट्रो, यहाँ पे दो नाइट्रो, इसके कारण। इसके बाद अगर 3 नाइट्रो तो क्या होगा, देखते हैं उसको। तो 3 नाइट्रो अगर है, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड Cl हियर। सो दोनों ऑर्थो पोजीशन में 2 नाइट्रो, और तीसरा है एक पैरा पोजीशन में। टेम्परेचर वेरिएशंस देखिए, पहले 623, फिर 443, फिर 368। इसमें क्या है, आप जस्ट वार्म वाटर देंगे, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं, तब क्या हो जाएगा, तब ये रिएक्शन बन जाएगा। तो Cl के जगह पे OH आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ भी नाइट्रो और यहाँ भी नाइट्रो। तो ये रहा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नाइट्रो। दिख रहा है शायद आपको, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नाइट्रो। दिस इज वन रिएक्शन, दिस इज अनदर, दिस इज द थर्ड। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे तो देखेंगे ये 443, ये 368, और यहाँ पे ओनली वार्म कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके NCERT में, can you think why does nitro group show its effect only at ortho para position and not at meta position? शायद आपको आंसर पता होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्या कि ऑर्थो पैरा पोजीशन में ही ये जो मैकेनिज्म था, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन में ही क्या था, ऑर्थो पोजीशन में आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी था, ऑर्थो पोजीशन में आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी था, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन में। इसीलिए तो आपको एक्सप्लेन भी करना है, और अगर हो सके तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है उसको थोड़ा दिखाना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारा डिस्कशन टॉपिक है अभी नंबर 2, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसको हम EAS भी लिख सकते हैं, या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AES, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव चार्ज होल्डर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो जहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा ये वहां पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन की कमी होते हैं। तो हमारे जो एरिल हैलाइड्स है, ये है आपका एरिल हैलाइड। हमारे जो एरिल हैलाइड्स है उसमें ना जो लोन पेयर था वो इट वाज इन कॉन्जुगेशन ना, तो वो रेजोनेंस में आता है। ये इससे पहले वाला डिस्कशन में हमने ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, हम देख चुके हैं। तो ये रेजोनेंस में आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी 2 ऑर्थो पोजीशन में और एक पैरा पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस कहाँ? ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस।
तो जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कौन से पोजीशन में अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन में अटैक करेगा, क्योंकि वहां पे उसको क्या चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको वहां खाना मिल जाएगा ना, वो भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा, तो उसको ऑर्थो पैरा पोजीशन में खाना मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगा। तो ऐसे ही हैलो एरीन्स के कुछ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखेंगे। ये है आपका हैलो एरीन। तो इसमें अगर हम दोबारा हैलोजिनेशन करें, क्लोरीनेशन करें, ब्रोमिनेशन करें, तो X2 और FeX3 डालने से ये होता है बेंजीन के साथ जैसे रिएक्शन था ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट तो कम होता है, हमें पता है, लेकिन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ना काफी ज्यादा होता है, और इसका जो रिएक्टिविटी है एरिल हैलाइड्स का, ये बेंजीन से भी ज्यादा है, क्योंकि बेंजीन में तो कारण था पाई क्लाउड, और इसमें क्या हम देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं प्लस आर इफेक्ट, जो कि एनहांस कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, बेंजीन में इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये कहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना ऑर्थो पैरा पोजीशन में होगा। ये हैलोजन है, तो दूसरा हैलोजन पैरा पोजीशन में आएगा और ऑर्थो पोजीशन में भी आएगा, क्योंकि यही दो पोजीशन में ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ मोर सिमेट्री एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग, क्या होगा? ये जो रीजन मैंने लिख दिया ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, मोर सिमेट्री और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो पैरा प्रोडक्ट है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट है, और ये दो कारण से है। ये तो है हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन। तो आप डिस्कशन जो कर रहे हैं, आप याद रखिए ये डिस्कशन हो रहा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। हैलोजिनेशन हम देख चुके हैं। दूसरा क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिसका नाम है नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए। H2SO4 नहीं देंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। अच्छा, इसमें हैलोजिनेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल है X+, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और नाइट्रेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। ये प्लस साइन वहां होता है जो कि कार्बन के साथ बॉन्ड करता है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर है, और यहां भी पहले की तरह दो प्रोडक्ट होंगे, और पैरा पोजीशन जो है ये नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन में जो अटैच्ड है यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। इसके बाद हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, इसके बाद क्या है? सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देने से ही और थोड़ा हीट करने से ही सल्फोनिक एसिड ग्रुप पैरा पोजीशन में आ जाता है। ये है एरिल हैलाइड, ये आपका पैरा पोजीशन में SO3H नाम है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये आपका मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट। आप ये चार्ट जो है जरूर आप देख देख के इसको मेरे साथ बनाइएगा, तो आपको याद रहेगा चीज, नहीं तो बस आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। जैसे मैं लिख के आपको समझा रही हूं वैसे ही आप अपने आप को समझाइए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ओवर एरिल हैलाइड्स। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? ये देखिए, ये आपका एरिल हैलाइड है, इसमें अगर आप RCl देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपका ये रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है। पहले की तरह पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो ये है आपका एरिल हैलाइड।
इसके पैरा पोजीशन में आपका R आता है और ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। नाउ इसके बाद ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल R+ है, क्योंकि R+ ही तो जुड़ रहा है यहाँ पे। और ये R+ ना कैसे मिलता है? क्लास 11 में था, अगर ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो भूल गए होंगे। तो RCl के साथ जब आप एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, ये एनहाइड्रस AlCl3 का रोल क्या है? लुईस एसिड कैटलिस्ट। लुईस एसिड कैटलिस्ट। अब ये लुईस एसिड कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम का ना 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, तो AlCl बॉन्ड्स 3 है, हर एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज लेस देन ऑक्टेट। तो वो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। कैसे लेगा? ये RCl से Cl- को ले लेगा। तो क्या होगा? Cl- अगर ले लेगा तो ये खुद बनेगा ना AlCl4-। AlCl3 था, एक Cl- लेने से हो जाता है AlCl4- और रह जाता है यहाँ पे R+, जो कि आपका डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है। RCl AlCl3 के साथ रिएक्शन करके क्या दिया है? R+, AlCl4-। ये R+ जो था ना, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो कहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस था? ऑन अकाउंट ऑफ रेजोनेंस कहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस था? ये +R इफेक्ट के कारण आपके ऑर्थो पैरा पोजीशन में। यस, तो ये अटैक करेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में ही करेगा, और पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, जैसे हमने बताया था पहले। यहां पे यहां पे पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू मोर सिमेट्री, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। वैसा ही यहाँ ही ऐसा ही होगा। इसके बाद क्या है? ये तो आपने देखा एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके बाद आता है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो वो कैसे होता है? ये है आपका एरिल हैलाइड। यहाँ पे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो एसाइल ग्रुप आएगा। ये RC डबल बॉन्डेड OCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन करने से एसाइल ग्रुप C डबल बॉन्डेड OR, और यहाँ पे ये है आपका एसाइल ग्रुप और C डबल बॉन्डेड OR, और ये कार्बन पॉजिटिव, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। कैसे जनरेट होता है आपका ये इलेक्ट्रोफाइल? पहले की तरह जो हमने देखा था, RC डबल बॉन्डेड OCl, साथ में क्या था? लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3। अपने पास इलेक्ट्रॉन है नहीं तो खींचेगा, ये CCl बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचने से क्या हो जाएगा? आपका RC डबल बॉन्डेड O पॉजिटिव, आपका इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, और ये AlCl4- ये हो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सो ये यहाँ पे H को सब्स्टिट्यूट करके क्या आ रहा है? C डबल बॉन्डेड OR। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये एसाइल ग्रुप है, तो ये है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ था तो एल्काइलेशन, और यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऐड हुआ है इसीलिए एसाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आता है रिएक्शन विथ मेटल्स। ये था ना हमारा तीसरा डिस्कशन पॉइंट। तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे क्या? फिटिग रिएक्शन, फिर वुड्स फिटिग रिएक्शन। हमें वुड्स रिएक्शन याद है ना? वुड्स रिएक्शन में क्या था? 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ 2 moles ऑफ सोडियम ड्राई ईथर में, और सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म होता है। यहाँ पे जस्ट अल्काइल हैलाइड के जगह हैलोएरिन हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ हैलोएरिन, जैसे हमने 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को ड्रॉ किए थे ना यहाँ पे, वही ऐसे ही एरिल हैलाइड 1 मोल, दूसरा मोल यहाँ पे एरिल हैलाइड,
और साथ में क्या, साथ में बस और क्या, सोडियम, जैसे वुड्स रिएक्शन में देखे थे, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडियम, क्योंकि NaX का प्रेसिपिटेशन ड्राई ईथर मीडियम में होता है। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट निकल जाएगा और 2 रिंग जुड़ जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो आपका ये 2 रिंग जो है जुड़ जाता है, एक रिंग और ये दूसरा रिंग, और साथ में तैयार होता है 2 moles ऑफ NaX precipitates in dry ether। तो ये जो 2 रिंग बना इसका नाम है डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, बाइफिनाइल भी बोलते हैं, डाइफिनाइल भी बोलते हैं। इसका ना 1 रिंग इज इन प्लेन और दूसरा जो रिंग है वो परपेंडिकुलर थ्रू द प्लेन ऑफ द फर्स्ट रिंग है। अगर एक इन प्लेन है, दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। जान के रखिए, ये यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है नहीं, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है। आपको स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो स्टार्टिंग जो सबस्ट्रेट है, रिएक्शन प्रोडक्ट और रिएक्शन कंडीशंस आपको याद रखना है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। इसके बाद है आपका वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो इसके बाद है आपका वुड्स फिटिग रिएक्शन। गलती से ना आप लोग फिटिंग मत लिखना, क्योंकि ये गलती होता है, इसीलिए मैं याद दिला रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखिए कि फिटिंग ना बन जाए ये, तो आंसर फिट नहीं होगा आपका। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन कैसे बनता है? ये है 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड एंड अनदर मोल क्या है, एल्काइल हैलाइड का, साथ में 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडियम। पहले की तरह वैसा ही करेंगे, 2 मोल्स ऑफ NaX को निकाल के रखेंगे ऐसे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसे। आपका ये बेंजीन रिंग बनाइए, इसमें डालिए R, ये R जुड़ेगा और साथ में बनेगा 2 मोल्स ऑफ NaX का प्रेसिपिटेट। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना, ये क्या है? ये है एल्काइल बेंजीन, ये है एल्काइल बेंजीन या एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो जस्ट कंपेयर द 2 रिएक्शंस। फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग। फिटिग रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ एरिल हैलाइड, वुड्स फिटिग में 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड, दूसरे मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड। और इससे पहले वाले डिस्कशन में क्या था? वुड्स रिएक्शन। तीनों को ना साथ में पढ़िए ताकि आपको याद रहे। वुड्स रिएक्शन में क्या था? 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड, अनदर मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड, साथ में 2 मोल्स ऑफ सोडियम, और आपका ये पार्ट निकल के एकदम 2 मोल्स ऑफ जस्ट अ मिनट, ये स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बनाना है, तो ये ऐसे बनाना है, X इधर और R इधर। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसको निकालना है ऐसे, ये आपका सुविधा होगा। तो ये रहा आपका ड्राई ईथर मीडियम। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज सिमेट्रिकल अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये है वुड्स रिएक्शन, ये है फिटिग रिएक्शन और ये है वुड्स फिटिग रिएक्शन। तीनों को साथ में पढ़िए तो याद रहेगा। तो चलिए, I wind up this session and I hope it was useful. एक चीज मैं बताऊंगी, रिविजन जरूर कीजिएगा रोज। Every day revision is required. Why I am scrolling? There is a reason. That is, I just want to show that here there was certain points that we discussed. क्या था? कि कितने टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं हैलोएरीन्स का। ये जो मैंने बनाया ना ऐसे, ये मैपिंग बोलते हैं। अगर आप मैपिंग करके पढ़ेंगे ना, तो आपका ये जो पढ़ाई है ज़्यादा दिन रिटेन कर पाएंगे। जैसे मैंने ये बनाए, इसके साथ साथ आप जब इसको रिवाइज करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्यों कम है, 1 रीज़न, 2 रीज़न, 3 रीज़न, 4 रीज़न, यहीं पे बनाइए।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का यहाँ नीचे जगह नहीं है, आपका नीचे जगह रख के आप बनाइएगा हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। रिएक्शन विथ मेटल्स जब आपने फिटिक और वुड्स फिटिक बनाया, वेरी गुड। यहाँ पे ऐसे ब्रोकन लाइन करके वुड्स रिएक्शन भी बनाइए कंपैरिजन। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग करके पढ़ेंगे, अपना खुद का कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे जो आपको कंफर्टेबल लगे, तो इट विल हेल्प यू इन योर स्टडी। I think my video was useful for you, was helpful to you. If it is, then please like, share, and subscribe. If you like and if you can drop a comment in the comment box, then I will be motivated for the next video. Thank you.